Hello guys, I am Bhupinder Singh, English teacher from SDS Public Senior Secondary School and Horizon Career Institute. Actually, in the last video, we have discussed some part of this lesson, and in this video, we shall discuss the next part of this lesson. Actually, this story is about a dying man and expatriate from Kashmir asks the author to write something about him after he is gone. The following pieces is what the writer Amitav Ghosh wrote to keep his promise. In this chapter, the writer Amitav Ghosh describes some characteristics of the main character Shahid, and he was fond of cooking and food. So let's start the next part of the chapter. No matter how many people there were, Shahid was never so distracted as to lose track of the progress of the evening's meal. इसका कोई असर नहीं था कि वहाँ कितने लोग थे, कितने लोग हैं. शायद कभी भी उतना अस्त व्यस्त नहीं होता था कि सायंकालीन भोजन के बारे में भूल जाता. From time to time, he would interrupt himself to shout directions to whoever was in the kitchen. जो कोई रसोई में होता था या होती थी, उसे हिदायत देने के लिए वो स्वयं को समय समय पर परेशान करता रहता था, यानी समय समय पर वो इंस्ट्रक्ट करता रहता था. यस नाउ एट द दही नाउ, हाँ अब दही मिला दो. इवन व्हेन हिज आई साइड वॉज falling, he could tell from the smell alone exactly which stage the रोगन जोश had reached. हालांकि जब उसकी नज़र कमज़ोर हो रही थी, वह केवल महक से ये बिल्कुल सही तरीके से बता देता था कि रोगन जोश कितना पक गया है या रोगन जोश किस स्टेज तक पहुंच गया. एंड व्हेन थिंग्स वेंट एग्जैक्टली एज दे शुड, और जब सब कुछ बिल्कुल वैसे ही होता जैसा होना चाहिए था, ही वुड स्निफ द एयर एंड क्राई आउट लाउड. तो वह हवा को सूंघता और ज़ोर से चीख पड़ता था, आह खाने का क्या महक है, या खाने की क्या महक है, यानी खाना बन गया है, रेडी है. Shahid was legendary of his prowess in the kitchen, frequently spending days over the planning and preparation of a dinner party. शाहिद अपनी रसोई संबंधी प्रोविस में स्किल्स, कुशलता के कारण प्रख्यात था. वह डिनर पार्टी की जल्दी योजना बनाने और तैयारी में दिनों बिता देता था. It was through one such party given while he was in Arizona that he met James Merrill, the poet who was to radically alter the direction of his poetry. ऐसी पार्टी में जो कि उस समय दी गई थी जब वह अरिजोना में था, और उसकी मुलाकात जेम्स मेरिल नामक कवि से हुई, जिसने उसकी कविता की दिशा को मौलिक रूप से बदल दिया. It was after this encounter that he began to experiment with strict metrical patterns and verse form. इसी मुठभेड़ के पश्चात, यानी इस एनकाउंटर सामने के दौरान, उसने कविता के कठोर छंदीय रीति और पद रूप पर प्रयोग शुरू किए. No one had a greater influence on Shahid's poetry than जेम्स मेरिल. जेम्स मेरिल से अधिक शाहिद की कविता पर अन्य किसी का प्रभाव नहीं था. Indeed, in the poem in which he most explicitly prefigured his own death, वास्तव में जिस कविता में उसने स्पष्ट रूप से अपनी निजी मृत्यु की पूर्व कल्पना की थी, I dream I am at the घाट of the only world, मैं स्वप्न देखता हूँ कि मैं एकमात्र दुनिया के घाट पर खड़ा हूँ. He awarded the envy to Merrill, उसने मेरिल से
सम्मान स्वरूप उपसंहार लिखवाया। शाहिद हश, शाहिद खामोश। दिस इज़ मी, ये मैं हूँ। जेम्स, द लव्ड वन ऑलवेज लीव्स, चाहा हुआ व्यक्ति हमेशा छोड़ जाता है, यानी जो प्यारा होता है वो हमेशा छोड़ जाता है। शाहिद प्लेस्ड ग्रेट स्टोर ऑन ऑथेंटिसिटी एंड exactitude in cooking and would tolerate no deviation from traditional methods and recipes। भोजन पकाने में शायद यथार्थता और प्रामाणिकता को बड़ा महत्व देता था और परंपरावादी तरीकों और नुस्खों में किसी फेरबदल को बर्दाश्त नहीं करता था। For those who took shortcuts, he had only pity। और जो छोटा रास्ता अपनाते थे उन पर वो केवल तरस खाता था, दया करता था। He had a special passion for the food for his reason, one variant of it in particular, Kashmiri food in the Pandit style। अपने प्रदेश के भोजन के प्रति उसकी विशेष रुचि थी, उसमें विशेष रूप से एक बात थी, पंडित शैली में कश्मीरी भोजन। I asked him once why this was so important to him and he explained that it was because of a recurrent dream in which all the pandits had vanished from the valley of Kashmir and their food had become extinct। एक बार मैंने उससे पूछा था कि यह उनके लिए उसके लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों था, और उसने स्पष्ट किया कि यह एक निरंतर आने वाले सोपन के कारण है जिसमें कश्मीर की घाटी से सभी पंडित गायब हो गए थे और उनका भोजन एक्सटिंक्ट, विलुप्त, समाप्त हो गया था। दिस वॉज अ नाइटमेयर दैट हॉन्टेड हिम एंड ही रिटर्न्ड टू इट अगेन एंड अगेन इन हिज कन्वर्सेशन एंड हिज पोइट्री। ये दुस्वप्न यानी ये भयानक स्वप्न उसे बार बार सताता रहता था और वह बार बार इसका वर्णन करता रहता था अपनी बातचीत में तथा अपनी कविता में। एट अ सर्टेन पॉइंट आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ यू नीडेड मी, यू नीडेड टू परफेक्ट मी। एक विशेष बिंदु पर मुझे तुम्हारी सूचना मिलनी बंद हो गई। तुम्हें मेरी ज़रूरत थी, तुम्हें मेरी पूर्णता दे सकते थे, तुम्हें मुझे पूर्णता दे सकते थे। इन योर अब्सेंस यू पॉलिश्ड मी इनटू द एनिमी। तुम्हारी अनुपस्थिति में तुमने मुझे दुश्मन बना दिया। योर हिस्ट्री गेट्स इन द वे ऑफ माई मेमोरी। तुम्हारा अतीत, तुम्हारा इतिहास मेरी स्मृति में यानी मेरी याद में बस गया है। आई एम एवरीथिंग यू लॉस्ट, यू परफेक्ट एनिमी, यूर परफेक्ट एनिमी। मैं वह सब कुछ हूँ जिसे तुमने खो दिया, तुम्हारा पक्का शत्रु। योर मेमोरी गेट्स इन द वे ऑफ माई मेमोरी। देयर इज़ नथिंग टू फॉरगिव, यू वॉन्ट फॉरगिव मी। क्षमा करने की कोई बात ही नहीं है, तुम मुझे क्षमा करोगे भी नहीं। I hid my plan even from myself. I revealed my pain only to myself। मैंने तो अपनी पीड़ा स्वयं से ही छिपाए रखी, मैंने स्वयं को ही बस इसका दर्द बताया। There is nothing to forgive, you won't forgive me। कुछ भी क्षमा करने को नहीं बचाए, तुम मुझे क्षमा करोगे भी नहीं। If only somehow you could have been mine, what would not have been possible in the world। यदि किसी प्रकार तुम मेरे बन जाते हो तो इस संसार में क्या चीज़ असंभव थी। वंस इन कन्वर्सेशन ही टोल्ड मी दैट ही ऑल्सो लव्ड बंगाली फूड। आई प्रोटेस्टेड बट शायद यू हैव नेवर एवर इवन बीन टू कैलकाटा। एक बार बातचीत में उसने मुझे बताया कि उसे बंगाली भोजन भी पसंद है। मैंने विरोध किया, परंतु शायद तुम तो कभी कलकत्ता गए भी नहीं हो। नो ही सेड, नहीं, वह बोला। बट वी हैड फ्रेंड्स हु यूज्ड टू ब्रिंग अस दैट फूड। परंतु हमारे कुछ मित्र हैं जो हमारे लिए भोजन लाया करते थे। व्हेन यू एट इट यू कुड सी दैट देयर वर सो मैनी थिंग्स दैट यू डिड नॉट नो अबाउट एवरीवेयर इन द कंट्री। जब आप उसे खाएंगे तो पाएंगे कि देश में हर जगह बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं है। वट आई से इज़, मेरे कहने का मतलब है, वाई कांट यू बी हैप्पी विद द कजिन्स एंड द क्लोथ्स and the music and all these wonderful things। आप cousins means
पाक प्रणालियाँ, खानों को पकाने के जो तरीके होते हैं वो बोलते हैं कैसे, पाक प्रणालियाँ, और कपड़ों और संगीत और इन सभी विस्मयकारी चीज़ों के साथ क्यों नहीं खुश रह सकते। He paused, Veruca, and added softly, और धीरे से कहने लगा, At least here we have been able to make a space where we can all come together because of the good things. कम से कम हम यहाँ पर एक स्थान तो बना पाए हैं जहाँ अच्छी चीज़ों के लिए हम सभी इकट्ठे हो सकते हैं. Of the many good things in which he took pleasure, none was more dear to him than the music of बेगम अख्तर. उन बहुत सी अच्छी चीज़ों में जिनमें वे आनंद लेते थे, बेगम अख्तर के संगीत से अधिक कोई प्यारी चीज़ नहीं थी. He had met the great गज़ल singer when he was in his teens. जब वे किशोरावस्था में थे तो वह एक मित्र के माध्यम से उस महान गज़ल गायक से मिले थे, through a friend. And she had become an abiding presence and influence in his life. शायद had a fund of stories about her sharpness in repartee. और उसने उनके जीवन में स्थायी जगह और प्रभाव बना लिया. शाहिद के पास उसकी वाक्पटुता की कहानियों का भंडार था. शाहिद वॉज हिमसेल्फ नो मीन प्रैक्टिशनर ऑफ रिपार्टी. स्वयं शाहिद भी वाक्पटुता में पीछे नहीं था, यानी प्रत्युत्तर देने में पीछे नहीं था. नो वन फेमस ओकेजन एट बार्सिलोना एयरपोर्ट ही वॉज स्टॉप्ड बाय सिक्योरिटी गार्ड जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू बोर्ड अ प्लेन. एक विशेष अवसर पर बार्सिलोना हवाई अड्डे पर जब वह जहाज में सवार होने वाला था कि एक सुरक्षा कर्मचारी ने उसे रोक लिया. जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू बोर्ड द प्लेन द गार्ड अ वुमन आस्क्ड. कर्मचारी जो एक औरत थी उसने पूछा, व्हाट डू यू डू, आप करते क्या हैं. आई एम अ पोएट, शाहिद आंसर. मैं एक कवि हूँ, शाहिद ने जवाब दिया. व्हाट वर यू डूइंग इन स्पेन. अब स्पेन में क्या कर रहे थे. राइटिंग पोइट्री, कविताएं लिख रहा था. नो मैटर व्हाट द क्वेश्चन, शाहिद वर्ड पोइट्री इनटू हिज आंसर. चाहे प्रश्न कुछ भी था, शाहिद अपने उत्तर में कविता का समावेश कर देता. फाइनली द एक्सएस्पिरेटेड वुमेन आस्क्ड. अंत में उस खिन्न महिला ने पूछा, आर यू कैरिंग एनीथिंग दैट कुड बी डेंजरस टू द अदर पैसेंजर्स. क्या आप कुछ ऐसा तो नहीं लेके जा रहे हैं जो दूसरे यात्रियों के लिए खतरनाक हो. एट दिस शाहिद क्लैप्ड अ हैंड टू हिज चेस्ट एंड क्राइड, ओनली माई हार्ट. इस पर शाहिद ने अपनी छाती पर एक हाथ मारा और चिल्लाया, केवल मेरा दिल. दिस वॉज वन ऑफ हिज ग्रेट वाइल्डियन मोमेंट्स एंड इट वॉज टू ओकेजन द पोएम बार्सिलोना एयरपोर्ट. यह क्षण एक महान कवि ऑस्कर वाइल्ड से प्रेरित था और इसी से प्रेरित होकर बार्सिलोना एयरपोर्ट नामक कविता लिखी गई. ही ट्रेजर्ड दीज मोमेंट्स, आई लॉन्ग फॉर पीपल टू गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू आंसर क्वेश्चंस. उसने इन क्षणों को संजोया. मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे प्रश्नों का उत्तर देने का अवसर प्रदान करें. He told me once on 7th May I had the good fortune to be with him when one such opportunity presented itself. उसने मुझसे यह एक बार कहा था 7 मई को मुझे उसके साथ होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जब ऐसा ही अवसर उपस्थित हुआ. शाहिद was teaching at Manhattan's Baruch College in the spring semester of 2000 and this was to be his last class. सन 2000 के सत्र में शाहिद मैनहट्टन के बरूच कॉलेज में पढ़ रहा था और ये उसकी अंतिम क्लास होनी थी. Indeed, the last he was ever to teach. वास्तव में अंतिम क्लास जो उसने कभी पढ़ानी थी, पढ़ा रहा था वो, पढ़ानी थी. The class was to be a short one for he had an appointment at the hospital immediately. कक्षा कम समय की होनी थी क्योंकि उसके तुरंत बाद उसे अस्पताल में जाना था.
आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट द ब्रिलियंस ऑफ शाहिद टीचिंग। मैंने शाहिद के अध्यापन कौशल के विषय में बहुत कुछ सुन रखा था। बट दिस वॉज द फर्स्ट एंड ओनली टाइम दैट आई वॉज टू सी हिम परफॉर्म इन अ क्लासरूम। परंतु ये प्रथम और अंतिम अवसर था कि मुझे कक्षा में उसको पढ़ाते हुए देखना था। आई वॉज एविडेंट from the moment we walked in that the students adored him. They had printed a magazine and dedicated the issue to him. जब हमने प्रवेश किया तो उसी समय स्पष्ट हो गया कि छात्र उसकी कितनी सराहना करते हैं। उन्होंने एक पत्रिका छपवाई और वह अंक उसको समर्पित किया। शाहिद for his part was not in the least subdued by the sadness of the occasions. जहाँ तक शाहिद से संबंध है वह इस अवसर की उदासी से तनिक भी विचलित नहीं हुआ। फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड ही वॉज अ स्पार्कलिंग डिवा, अख्तर इनकारनेट, ब्रेमिंग विद लाफ्टर एंड नखरा। When an Indian student walked in late, he greeted her with the cry, "Ah, my little subcontinental has arrived." Clasping his hands, he feigned a swoon. It stirs such a tide of patriotism in me to behold another South Asian. आरंभ से अंत तक वह एक चमकते हुए दीवा। अख्तर इनकारनेट, कपलंद अख्तर के मूर्त रूप। ब्रिमिंग विद लाफ्टर, हंसी और नखरे एंड नखरा से लबालब। और जब एक भारतीय शिष्या देर से आई तो उसमें चीख कर उसका अभिनंदन किया, ओ मेरी नन्ही उपमहाद्वीपीय पधारी हैं। अपने हाथों को जकड़ते हुए उसने मूर्छित होने का नाटक किया। किसी दूसरे दक्षिणी एशियाई को देखकर मुझ में देशभक्ति का ज्वार भाटा फूट पड़ता है। His time at Penn State he remembered with unmitigated pleasure. मेरा पेन, इट्स अ स्टेट, पेन एक राज्य में बीते हुए अपने समय को पूर्ण हर्ष के साथ याद करते हैं। I grew as a reader, I grew as a poet, I grew as a lover. मैं एक पाठक के रूप में, एक कवि के रूप में और एक प्रेमी के रूप में मैंने विकास किया है। He fell in with a vibrant group of graduate students. वह स्नातक विद्यार्थियों के एक ओजस्वी